तो पाकिस्तान मैच हार गया है एज़ यूजुअल इंडिया के खिलाफ। तो मेरे साथ जो है अली बैठे हुए हैं। तो अली, आपका क्या कहना है, कैसा परफॉर्मेंस था पाकिस्तान का? I would say कि I think the fault is not in our team. The fault is in the fans. The fault is in the management, and the fault is in the whole public. हम्म। Because I think it is us who give false hope to us, and it is us who give false hope to our coming generation. And I think to somehow, our older people, even they were living in false hopes. हम्म। Okay, so that is why I think the false hope is in our genetics. ट्रू ट्रू। Okay. इसको Okay. अपना पॉजिटिव होप्स भी कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी कह सकते हैं। Yeah, Dekho, I mean, हाँ। it all okay. Forget about anything. I mean, according to me, you may be the biggest player in terms of batting, in terms of bowling, in terms of fielding, in terms of strategic captaincy. Okay, but it all always comes down to the day you should perform and show your ability and everything, right? हम्म। आप दुनिया के सबसे powerful मुल्क हो सकते हो, but at the day of war zone or battlefield, you lose. Finish. It doesn't matter. इट It डजंट doesn't मैटर। matter. ट्रू ट्रू। It doesn't matter. या। I mean, it's very good to see the scorecard again, so that just to refresh my memory. So I mean, ठीक है. One thing very commendable. पाकिस्तान ने जब शुरू किया, I mean, okay, at the point where they started the toss and we took the decision to field after we won the toss. I was like, चलो ठीक है, okay, let's try this, let's do this. I was positive up until then, and then one thing very good Salman Ali Aga did was we did not see him ball in the Sri Lankan series, in the Australian series, and we did not see him ball. I think if I'm not wrong, correct me if I'm wrong. I thought कि वो जब से वो कैप्टन बना है मैंने उसको बॉलिंग करते नहीं देखा. ट्रू ट्रू। हाँ, ऐसे ही। Right? So it was a good surprise element. He posted himself to take the first over, and he took Abhishek Sharma, which is the top three batters of India, or he's amongst the top four batters in India as a whole, ट्रू। right? But after that, I mean, so it meant that you only did preparation for Abhishek Sharma, so you did not do preparation for the rest nine batters. या, गुड पॉइंट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पे। ओके, चलें, टॉस पे आए थे आप। तो टॉस पे अब जो है, अच्छा, मैं ये एक तरीके से मैं सवाल पूछ भी रहा हूँ फिर अपना जवाब भी दे रहा हूँ। तो उसमें यह है कि टॉस का इवन आई वाज लाइक कि जब बॉलिंग ली तो मैंने कहा यार चलो सही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि पाकिस्तान बैटिंग पहले कर रहा है। सॉरी, हाँ, पहले बैटिंग कर रहा है, तो अब पहले बॉलिंग करेगा तो क्या पता जो है मैच जीत जाए। लेकिन अब जो है ये देखने को मिल रहा है कि आपका एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो है कोलंबो में सेकंड बैटिंग इस वर्ल्ड कप में सब ऑल आउट हो गए, कोई चेस नहीं कर पाया, शुरू में हाई स्कोर बन रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से पहले तो आप ये 9th ICC T20 मैच है आपका, आउट ऑफ 9 टाइम्स आप जो है सिर्फ एक ही दफ़ा जीते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप पहले बैटिंग भी कर लेते तब भी यही रिज़ल्ट सामने आता, पाकिस्तान लूजेस, सही है। और अब जो है फर्स्ट बॉलिंग भी की तब भी यही रिज़ल्ट आता। आप क्या मेरे ओपिनियन से एग्री करेंगे? Yeah, I mean, if I totally agree with you. अगर आप ये देखो कि इंडिया की चेज हिस्ट्री, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट. इंडिया की जो चेज हिस्ट्री है वो बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री है, यानी कि इवन स्ट्रॉन्ग हेवीवेट टीम्स दे स्ट्रगल व्हेन इंडिया इज चेजिंग, बिकॉज ओके, तो उसकी प्राइमरी रीजन ये कि उनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है. आई थिंक दे आर नाउ playing with 7 batters. यानी कि you start with Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, Tilak Verma, Shivam Dube. Okay, Shivam Dube is an all-rounder, but Shivam Dube की अगर आप देखो कि Shivam Dube again he performs, उसको हम लोग को वो ऐसा बैटर ही नजर आ रहा होता है. ठीक है. हार्दिक पांड्या also, ठीक है, हार्दिक पांड्या तो अभी currently in today's date, I think if you take out the list for best all-rounders, so if you remove Pat Cummins and if you remove Saim Ayub as well. Saim Ayub as well. Yeah, okay. Saim Ayub, I mean, it's better to take him as it's better to take him as a full-time spinner, full-time bowler. Okay, fine, no problem. If you remove Pat Cummins, or if you remove some good all-rounders from New Zealand or South Africa, ठीक है. Hardik Pandya is the best all-rounder, right? True. And consistently performing. Yeah, and वो consistently मुझे ये this was the first match जिसमें हमने हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा को कंट्रोल में कर लिया, but हार्दिक पांड्या compensated for his batting from his bowling. True. ठीक है. I think he took the wicket of बाबर आजम, या नहीं, इस दफ़ा किसी और को लिया है.
फरहान की विकेट ली है और फिर उसने क्लीन बोल्ड किया उस्मान तारिक को, खैर उस्मान तारिक वाला टेल हाँ टेल एंडर। हाँ ये बड़ा सरप्राइज था, मैं फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहा था साहिबजादा फरहान परफॉर्म करेगा, बट वो जो है सैडली हार्दिक पांड्या के खिलाफ आउट हो गया। तो क्या कह सकते हैं, मतलब सब जो अच्छे बैटर्स थे हमारे, साइम और सलमान। ओके, साहिबजादा फरहान आल्सो ओके, आई मीन अगेन असल में बात ये है कि वी एज फैंस और वी एज पाकिस्तानी सिटीजंस, बिकॉज़ ओके क्रिकेट इज वेरी क्लोज टू अस, आई बिलीव कि वी गो इनटू अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, ठीक है, व्हिच इज लाइक यू नो यू गेट अ सेंस ऑफ प्लेजर in getting some achievement or in getting to see what you want to see. Okay, so we immediately then jump into forgetting our very bad past. Okay, in terms of cricket, I'm talking about. ठीक है, ठीक है. अब people are okay. Saifullah Farhan, yes, he was a good domestic player. Then he came, he performed well in PSL, but उसकी international में T20 में, I think apart from the innings he played against India and he hit 5 6s or 6 6s to India. I think last year when we were playing India, right? ठीक है. I mean, apart from that, उसके बाद उसने पूरे साल क्या किया? आई थिंक नहीं, कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। अब मैंने इतना स्टेटिस्टिशियन नहीं हूँ, मैंने लिस्ट तो नहीं रखी हुई, बट फॉर नाउ आई वुड से इट्स ओके, लेट हिम गो फॉर दिस वर्ल्ड कप, ओपनिंग ही करने दें। इसके कुछ वीक लिंक्स हैं, जैसे इसको अगर आप ऑफ पे बॉल कराओ, थोड़ा सा भी ऑफ पे, यानी फोर्थ स्टंप पे ही करा लो तो ये आउट। आप इसके PSL के अगर आप विकेट्स देखें तो ज़्यादातर यही हुआ है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे आप स्टंप पे कराओ तो ही गेट आउट, यानी ही इज़ अ लेग साइड प्लेयर, ही इज़ अ स्लॉगर। तो हाँ, ये मैं कहूँगा साहिबजादा फरहान के बारे में। बाकी मेरे माइंड में या तो मेरा ख्याल है, देखो साहिबजादा फरहान का ये भी है, आई मीन द वे आई वुड नॉट, or even in the most of the people who are watching the cricket, they will not really focus on it because यार उसकी age, I mean he's in his 29 years, वो हो गया, I mean he has I think 4 or maximum 3 or 4 or 5 years of cricket left into him, ठीक है। और वो भी जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है ऑफ यू नो सिलेक्शन मैनिपुलेशन, ठीक है, यू नेवर नो कि ये आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ये गायब हो गए। हाँ ट्रू ट्रू, आई एग्री विद यू इन दैट। वैसे अभी सिलेक्शन की बात हो रही है, तो फ़हीम अशरफ का आपको क्या लगता है? अभी जैसे मैं 2 मैच पहले नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच तो जितवा दिया, ठीक है, लेकिन उस दिन उसने बॉलिंग नहीं की, इसने आज बॉलिंग नहीं की, अमेरिका के खिलाफ बॉलिंग नहीं की, तो इसका टीम में जगह क्या बन रहा है? आज भी बैटिंग नहीं कर पाया, 14 रन बनाए 10 बॉलों में, वो 14 बॉलों में 10 रन बनाए, उल्टा। Is basically filling up a gap which you do not have an all-rounder to replace it with. ठीक है. At first, I was thinking कि यार ये maybe फहीम अशरफ को replace करके शादाब खान को डालें. ठीक है. But in this sense, I thought कि हाँ, if they do it, then they will have to put a an all and they will have to put a fast bowler, full-time fast bowler. ओके ठीक है, बिकॉज आपके पास फास्ट बॉलर कम हो जाता है ना। ठीक है, फहीम अशरफ इज अ ठीक है डिसेंट एवरेज फास्ट बॉलर, ठीक है, ही हैज अनएक्सपेक्टेड या मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की विकेट्स निकाल देता है। ठीक है, when the main fast bowler gets tired from the early overs, तो इसको overs देके जो है ये लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की विकेट्स निकाल देता है। बट आई वाज रियली के आई वाज लाइक यार ये आई मीन आज यस अगेन इनकंसिस्टेंसी इज देयर, यू विल सी हिम। अब देखो अगेन एज फैंस अगेन वी आर फूल्स, ठीक है। अब देखो कि आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ, बट इवन व्हेन आई एम सीइंग द न्यूज़ चैनल्स हियर, आई मीन आई एम सीइंग कि यार you are struggling to win against Netherlands and you are representing Fahim Ashraf as a star performer, and you are forgetting to see that it is Netherlands. It is not that you were struggling to win against England, Australia, or South Africa or New Zealand. Okay, and this Fahim Ashraf inning saved yourself. ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आप बेसिकली नेदरलैंड के वजह नेदरलैंड में कोलैप्स हो गए थे, which is I mean on which you should raise more important questions than Fahim Ashraf saving your vote. ट्रू। असल में वो ये मैच जीत जाते हैं तो चीज़ें ब्रश अंडर द कारपेट हो जाती हैं। we get into euphoria, वो euphoria brain gets fog, you like भाई सब जीत गए तो सब भूल गए। हाँ, खास तौर पे जब आप इतना मेरे ख्याल से टेंस
करके जीतते हैं तो आप शुक्र कर देते हैं यार जीत गया बस। जब आप बहुत रिलैक्स करके जीतते हैं तो क्वेश्चंस माइंड में शायद आते हैं कि यार वाज देयर एनीथिंग दैट वी मिस्ड, क्या अगली दफ़ा हम और जो है बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक ये एक चीज़ होती है। आप देखो ना, आप अभी चलो forget about batting and if you see bowling also, Salman Aga did only 2 overs, okay, fine. I feel, I don't know if you agree with me or not, कि they brought in Usman Tariq after 11th over. I agree with you on this one. Yes. ठीक है, after 11th or 10th over, ठीक है. And you know, I was when I was watching the match, तो उस वक्त हुआ ये था कि I left my office at around 5:15, which is your 7:15, ठीक है. तो मैंने अपनी गाड़ी में अपने मैप्स के साथ एक स्क्रीन पे लगाया हुआ था एंड आई वाज वाचिंग द मैच एज वेल, ठीक है. आई वाज लाइक कि यार 8 ओवर हो गए एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली जूमिंग इन द बॉलर एंड मे बी आई एम रीडिंग द नेम रॉन्ग कि यार मे बी आई एम मिसिंग उस्मान तरिक. आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार 9 ओवर हो गए एंड आई हैव मिस्ड उस्मान तरिक ओवर समहाउ. आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है. आई वाज लाइक कि नो मैन. Then I was like, then मैंने गाड़ी रोकी, then I'm checking the scorecard, मैंने कहा उस्मान तारिक तो आया ही नहीं है अभी. He's nowhere. I mean, he's in the field somewhere. उसके तरफ बॉल भी नहीं जा रही, तो वो नजर भी नहीं आ रहा मैच में कैमरा में. Okay, so this is what I felt. What do you think? What do you think about Usman Tariq? The number he was brought to over to throw it over. आई थिंक जो है काफ़ी लेट लाया गया, क्योंकि अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें वायरल हो रही थी कि उस्मान तारिक पे बातें ही बातें कर रहे थे इंडियंस. इवन ये वीडियो एक क्लिप वायरल हुई थी कि जो है आपका सूर्या कुमार यादव इज़ बॉलिंग लाइक उस्मान तारिक इन द नेट सो दैट दे कुड प्रैक्टिस कि वो किस टाइप की बॉलिंग करेगा. और तो मतलब जब ईशान किशन सेट हो गया था और आपको थोड़ा था यार पावर प्ले है तो पावर प्ले को जाने दो, तो पावर प्ले के फ़ौरन बाद लाना चाहिए था, ना कि आधा इनिंग्स जा चुका है. मेरे ख्याल से इंडिया काफ़ी हद तक सेट हो गया था, उनको समझ आ गया था ये पिच स्लो है, लेकिन ईशान किशन समझ गया है पिच को. तो इवन अगर आप स्काई का और उसका क्या नाम है तिलक वर्मा के इनिंग्स देखें, 30 रन हैं बट इन 30 बॉल्स. वो भी समझ गए थे यार ये पिच स्लो है और ग्राउंड्स बड़े हैं तो हम इतना शायद स्कोर नहीं कर पाएँ, लेकिन ईशान दूसरी तरफ चल रहा है तो उसको चलने देते हैं. तो मतलब आई थिंक उस्मान तारिक को जल्दी लाना चाहिए था डेफिनेटली. आई थिंक जब उसको लाया गया तो इंडिया ऑलरेडी काफ़ी सेटल्ड हो गया था, तो इतना वो इफेक्ट नहीं ला पाया. इवन अपना मुझे ये पता चला था कि 2 ओवर में काफ़ी ज़्यादा पिटा, फिर बाकी 2 ओवर में कम बैक किया इसने, तो काफ़ी लेट था. आई एग्री विथ यू ऑन दिस वन कि 7th ओवर तक मैक्स या 8th चलो ले आते आप कि because once you would have seen कि हाँ यार कि वो पावर प्ले देखो. Okay, in power play, the fielding team or the bowling team is a bit handicapped, so you cannot really control the situation in the power play. Okay? I mean, it only comes down to a bowler's quality to either do LBW, to get bowled, to get caught behind, और कि बिल्कुल ही inside the circle अगर आपका catch आ गया तो that is something that you can. Otherwise, अगर बैटर के पास बहुत रूम है, पूरी फील्ड खाली पड़ी है, कहीं भी फील्डर खड़ा हुआ नहीं है, पावर प्ले चल रहा है, राइट? तो it gets very easy for them to cross the ball. ठीक है? Yes. Once it is over and your beating is almost finished, ठीक है? Then you take your prize assets out and then you take your punishment back. True. But I don't know, ठीक है. In some aspects, I would say कि yes, सलमान अली आगा के कुछ decisions जो हैं वो unorthodox हैं and उसके कुछ decisions हैं वो ठीक है, अच्छे हैं. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अभी उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग अभी सीरीज जीती, ठीक है. A lot of people are debating कि full team नहीं थी और ये सब A team थी, B team थी, whatever you say. But I think कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी थी, ट्रेविस हेड था, सिर्फ पैट कमिंस हेजलवुड नहीं थे, बाकी उनके स्टोनर्स भी खेल रहा था. उनका वो क्या नाम है उसका एडम जैम्पा भी खेल रहा था, ठीक है, इंग्लिश भी खेल रहा था. तो आई मीन दे हैड गुड फेयर रीजनेबल टीम. और नहीं, जो जाहिर सी बात है वो ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ़ नहीं है, वो वही टीम लेकर जाएगी वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि 1 हफ्ता रह गया वर्ल्ड कप में, तो वो जाहिर सी बात है उसी टीम को ट्राई करेगी जो वर्ल्ड कप में जा रही है. और अभी हमें यही देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गई है. जिम्बाब्वे won very convincingly against the सिकंदर रजा was completely very under control. ट्रू. अच्छा, एक चीज़ मेरे एक और माइंड में आई उस्मान तारिक रिलेटेड. कुछ बातें मैंने सुनी कि इवन मैं भी नोटिस किया, ही इज़ बॉल्ड मोर टू राइट हैंडर्स एंड हैज़ गॉट मोर सक्सेस टू राइट हैंडर्स. तो क्योंकि ईशान किशन था तो उसको इसलिए ओवर नहीं दिया गया, लेकिन फिर वही बात है कि अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स खड़े हैं वो मारे जा रहे हैं, शाहीन अफरीदी आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है उसको नहीं आउट कर पा रहा, तो फिर आप जो है उस्मान तारिक को नहीं लाओगे या तब भी.
Your question is in the answer, and your answer is in the question. And I mean, it's. I mean, see, I go through some of cricket podcasts and vloggers also. When I'm driving to work and coming back to work, and a lot of them, or majority, all of them have pointed out कि भाई ये जो पुराने लोग आपने पाल के रखे हुए हैं, in which we have the legend, the number one legend of the world, of the universe, of the multiverse. ओके, ठीक है। एंड उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी है, ठीक है भाई, आई थैंक शाहीन शाह अफरीदी फॉर टेकिंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड केएल राहुल विकेट इन दोस फर्स्ट 3 overs of the match 5 years or 4 years, 5 years ago. Okay, I thank him very much for that. But the world has moved on from them. The Indian team has moved on from them I from agree. that moment, and they have completely read, they have written articles on Shaheen Shah Afridi's walking style, sitting style, eating style, okay, going to bathroom style, coming back to bathroom style. They know every single millimeter, the way he will move, the way he will look. Okay, so they have read him totally. So there is, so Shaheen Shah Afridi को बिल्कुल जो है ना वो, I don't know, he needs some time off. I think as a fast bowler, okay, jokes apart, as a fast bowler, I believe कि यार उसको थोड़ा सा rest दो. एटलीस्ट 6 8 months के लिए उसको थोड़ा जो है गायब कर दो, टेक हिम टू अ डार्क रूम एंड जस्ट से भाई जस्ट रिलैक्स योर मसल्स, कूल देम ऑफ, ठीक है, गेट योर ब्रेथ, मीन कैच अप टू योर ब्रेथ, ठीक है, एंड देन कम बैक एंड देन वी हैव वन थिंग, ओके, आई थिंक एज पाकिस्तानी फैंस वी रियली नीड टू सेट आवर क्राइटेरियाज कि भाई whom should we call star, premier, king, the legend. We should be really careful because you see a performance for 3 matches and they perform very well, and then immediately from you're like, "भाई ये king है, ये best है, इसका ये record है, इसका वो record है, ये है, ये वो है." Then this thing goes into Shaheen's mind, the king's mind, the Shadab's mind, and then Naseem's mind. ये सब चीजें उनके दिमाग में जाती हैं, they are like, "Oh my God, I am the king of the castle. Nobody can touch me. I am the best in the world." Hmm. So yeah, I mean, this is. I mean, you can share your technical insight of this. I am sharing more my emotional insight of this. नहीं, आई थिंक आई एग्री विथ यू। हाँ, कि जो है वो फैंस तो ठीक है एक हद तक कर लेते हैं, अब फैंस को भी पता है, बल्कि यही है फिर कि अब जैसे शाहीन अगर आज अच्छा परफॉर्म कर लेता, उस पर रील्स बन जाती, मीम्स बन जाती, सब हो जाता, फिर जो है ब्रांड्स भी उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं, और फिर वही कि जो है अगले अगले 2 टूर्नामेंट्स के लिए तो उसका नाम पक्का ही था। तो ये एक साइकिल है जो जिससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी मेरे माइंड में है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि अगर हम हर प्लेयर का बात करें तो 1-1 घंटा भी कम पड़ेगा। नहीं, I think we can just, no problem. We can wrap it up. Let me see what else we can discuss. We have scorecard. We have India. नीचे आओ तो यहाँ पे. Oh yeah. I mean, apparently, according to us, okay, this is something that I thought maybe in the 15th or 16th over, मेरे दिमाग में अचानक से आया. Okay, and I think I was mentioning it to one of my friends also when I was talking to him on WhatsApp. तो मैंने उसको मेंशन किया, मैंने कहा कि यार ओके, ever since we announced our squad, or not announced, ever since the venue of this event was announced कि ये कोलंबो में होगा, पाकिस्तान will play in Colombo, श्रीलंका and India, और जो भी दूसरी टीम्स के मैचेस तो मिक्स हो गए, तो फिर we get into an advantage कि हाँ यार we are limited to one venue और let's say one country एडवांटेज, ठीक है, जैसे इंडिया के पास चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई का एडवांटेज था, ट्रू ठीक है, तो इट इज ओके, इट इज फेयर, मुझे इससे बुरा नहीं लगा. So everyone from the TV, journalists, media, everyone were talking, "हाँ यार, spin attack. We should, take our spin heavy team." Okay, where is Sajid and Noman? Very good point. Where is Sajid and Noman? Okay, I very much respect Usman Tariq. I very much respect this guy, who has also good number under his belts in the domestic arena. Fine, no problem. Not taking that away. ठीक है. बट अगेन इफ यू विल लाइक कि भाई हमें स्पिन में हैवी होना है, तो ये आपके जो हैवीएस्ट स्पिनर्स हैं who on the test matches they are taking 19 wickets, 20 wickets in one single 5-day matches. ठीक है, so अगर आप उसको 5 day में भी स्प्लिट करो तो that is 4.5 or 5 wickets in a day. True. ठीक है, where are those guys? I don't understand. I mean, ठीक है,
एंड अपेरेंटली साजिद और नमान का नाम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बी में है, बी कैटेगरी में है। दे आर नॉट लाइक सी डी और ओह सी डी कैटेगरी नहीं है, दे आर ए कैटेगरी में तो कोई भी नहीं है, ठीक है। इट अच्छा स्टार्ट्स विद बी, ओके इट स्टार्ट्स विद बी, ठीक है। ए कैटेगरी में पहले ये बाबर एंड अदर प्लेयर्स का नाम था, बट आई मीन ठीक है, पीसीबी टुक अ गुड डिसीजन कि भाई या वो ट्रू परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, तो व्हाई शुड वी गिव देम ए कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू तो आई मीन या आई मीन वेयर इज साजिद नमान, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन आपने देख लिया ना, आज आपने देख लिया दिस वाज हेवी मैच। आपके पास अभी भी वैसे कोई फास्ट बॉलर शाहीन की कोई जगह बन गई, आई डोंट नो। नसीम को हमने स्क्वाड में रखा हुआ है, व्हेन विल यूज इट? अगर चलो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन नाउ टुडे, अगर आप आज की टीम देखो, whom will you replace to put नसीम? अच्छा नसीम में ये है कि ही हैज़ स्पेस। तो अच्छा मेरे माइंड में सलमान मिर्ज़ा काफ़ी टाइम से, और इंटरनेशनली जब वो आया है, जब से वो आया है इंटरनेशनली, ही इज़ हैज़ परफॉर्म बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी वर्ल्ड कप में भी जो नेदरलैंड्स के खिलाफ उसी ने सबसे अच्छी बॉलिंग कराई फास्ट बॉलर्स में। और शाहीन पिटा था नेदरलैंड्स के खिलाफ, उनको भी फार्मूला पता चल गया था कि ये इन स्विंग ही कराएगा, 5 साल से यही करा रहा है, पैड्स में पकड़ने की कोशिश करेगा, हम वो होने नहीं देंगे, हम थोड़ा गार्ड इस तरफ का ले लेंगे और लेग पे फ्लिक करेंगे। और सलमान मिर्ज़ा का ये था कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था, स्लोअर बाउंसर भी ट्राई कर रहा था, क्विकर बाउंसर भी ट्राई कर रहा था, क्विकर बॉल गुड लेंथ पे, स्लोअर बॉल गुड लेंथ पे, मतलब सारी वेरिएशंस ट्राई कर रहा था वो, और ओवरऑल अच्छी बॉलिंग कराई उसने। तो आई थिंक दोनों नसीम और शाहीन को रिप्लेसमेंट जो, क्योंकि आप सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर को रख रहे हैं अभी, तो वो सलमान मिर्ज़ा होना चाहिए मेरी नज़र में, बिकॉज ही इज़ अ विकेट टेकर। आई थिंक विकेट टेकर्स मैटर मोर राइट नाउ रादर दैन इकोनॉमी बचाने वाले, क्योंकि इकोनॉमी बचाने में ये है कि बैट्समैन तो आउट नहीं हुआ, उसको 2-3 ओवर निकाल लेगा वो, फिर वो सेट भी हो जाएगा, फिर वो मारना शुरू कर देगा। तो विकेट टेकिंग बॉलर्स होने चाहिए, और फास्ट बॉलर में अभी आई थिंक सलमान मिर्ज़ा। देखो, one thing which is true as well is that we should say wickets is important, but we should add one more point under it कि early wickets is important। अर्ली विकेट्स ओके ठीक है, because इंडिया जैसी टीम है वो, आप द प्रॉब्लम इज कि यार जब आपकी बैटिंग डेप्थ 7th नंबर तक अगर बैठी हुई है, ठीक है, तो द थिंग इज कि गेटिंग विकेट्स, इवन 4 विकेट्स इज नॉट एनफ, और 5 विकेट्स इज नॉट ट्रू एनफ। ट्रू आपको बिल्कुल ही उनको 8th नंबर तक डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया की बैटिंग रुकेगी, वरना तो यार उनको कोई भी बंदा, इफ यू सी, आई वाज वेरी स्केर्ड कि भाई, आई वाज वेरी इन हैप्पी इन अ सेंस कि रिंकू सिंह अगर ये हार्दिक पांड्या की जगह पे आ जाता ना, तो ये 220 हो जाता। रिंकू सिंह इज अ वेरी, कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट क्रेजी एनिमल, ठीक है, वो तो उसकी किसी वजह से ऊपर के नंबर पे जगह नहीं बन रही, ठीक है, इंडिया की टीम के अंदर उसकी ऊपर जगह नहीं आ रही। बट इफ यू रिप्लेस हार्दिक पांड्या नंबर विद रिंकू सिंह, ठीक है, रिंकू सिंह तो पागल हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसके आईपीएल के मैचेस देखे एंड ही इज सम क्रेजी, एब्सोल्यूट क्रेजी बंदा, यानी कि उसको उन्होंने ऐसे ऐसे आईपीएल के मैचेस दिए, ठीक है, आईपीएल की पिचेस छोटी होती हैं, बैटिंग पिच होती है, एंड बॉलिंग क्वालिटी आईपीएल की ठीक है, क्वेश्चनेबल है, दैट्स फाइन, बट उसको उन्होंने ऐसे ऐसे मिशन पे दिए कि 2 बॉलें हैं और 12 रन चाहिए, वो दोनों छक्के मार के आ गए, ठीक है। ही हैज अ लॉट ऑफ सच इनिंग्स। या ही हैज़ क्लिप्स अक्सर आ रहे होते हैं, मैं आईपीएल को फॉलो नहीं कर पाया पिछले 2-3 साल से, बट रिंकू सिंह का नाम जो है काफ़ी सामने आया, और क्लिप्स भी आए कि इवन आई थिंक एक ओवर में 35 चाहिए था, उसने 6 छक्के भी मार दिए थे। तो हाँ, तो ये है। So I mean, the last, I think we should wrap up. We should wrap up by, I mean, concluding on. I think. Oh yeah, okay. Salman, sorry. Sajid and Noman again. I don't know why they were dropped, or dropped in the sense of why they were not considered to be taken. Yeah. ठीक है. We have last I will come to Abrar, but before that I will touch on Khwaja Rafe or Rafe. Khwaja Rafe. ठीक है. आप I don't know कि चलो ठीक है, he's a new guy and he can perform. ठीक है. So are you keeping him in the squad to give him a big match to play in semi-final or quarter-final? That doesn't make sense to me. कि आपने एक नए बंदे को रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, he came, he got selected based on his performance, based on his PSL history, based on his domestic history, based on his background. ठीक है, fine, I like the guy, but I want to see the guy. True. When will I see him? I want to see him playing. ठीक है, I want to see him. I mean, I don't want to say it, but I don't know if I should say this or not. ठीक है, because this is a very sensitive topic. But अगर आप किंग के बारे में जरा सा कुछ ये बोल दोगे कि वो उसको आप हिला नहीं सकते,
ठीक है। तो आई मीन आप देखो ना किंग साहब की क्या अब जगह बन रही है टीम में। आई मीन सो मेनी, आई मीन आई वाज वाचिंग राशिद लतीफ ऑन यूट्यूब, sorry, on air by, sorry, on Geo News, and he simply said very frankly, I think, I don't know if it was Geo News or it was his personal YouTube upload. I mean, he was simply saying that, bhai, the only way to get rid of Babar Azam is to retire out kara. That is such an embarrassing thing to say. I mean, but it is the truth. Hmm. It is a reality. True, true. Yes. ठीक है, I mean, I don't know कि how we are so trapped into this issue. ठीक है, कि you cannot either change his position, you cannot change his, you cannot ask him to sit on the bench, you cannot ask him to, you know, I mean, I don't know Mm-hmm. कि कितनी हैंडीकैप सिचुएशन है हमारी कि हम उसको हिला नहीं सकते। तो ख्वाजा नवाब पे भी देखना ये जाया हो जाएगा, गॉड फॉरबिड, अल्लाह नहीं कि अल्लाह बचाए इस बात से, मेरी मुझे लग रहा है जाया हो जाएगा। एंड पहले भी देखा है हमने होते हुए, अभी भी कोई Yeah, yeah. सरप्राइज शायद ना हो हमारे लिए। और आई थिंक लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ दे गिव हिम अ चांस, डेफिनेटली द नेक्स्ट मैच ऑन द 18th of Feb अगेंस्ट नामीबिया, ही शुड बी गिवन अ चांस। छोटी टीम है तो देनी चाहिए। Namibia, I mean, come on, did you? यार नमीबिया या इवन नेदरलैंड या आई मीन यूएसए, आई मीन देखो ये सब चीजें हमारी काउंटिंग में नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि, आई एम नॉट सेइंग कि यार, आई एम नॉट सेइंग कि यार ठीक है, आई होप कि these teams become bigger and True, they true. start giving us competition. Yes. ठीक है, but I mean the thing is that if I want to set my standards, so at least I should I should start with West Indies, then I should go to South Africa, then I should go to New Zealand, then I should go to India, then I should go to Australia. ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब अगर हमारी सिचुएशन हर वर्ल्ड कप में ऐसी होती है ग्रुप स्टेज में कि इससे जीतोगे तो उससे जीतोगे, तो फिर इससे हारोगे तो उससे जीतोगे, तो वो टीम उससे जीतेगी। हाँ। So it's so last let's cover Abrar Ahmed. What do you think about Abrar Ahmed? 3 overs, 38 runs, Yeah, 12, expensive. 12.6 economy. आई थिंक यू कुड से इट वाज जस्ट अ बैड डे। मैंने Okay. टू बी ऑनेस्ट उसकी बॉलिंग नहीं देखी। इट कुड बी जस्ट अ बैड डे, बट ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली फॉर पाकिस्तान। पहले तो था कि इसको टीम में नहीं रखा जा रहा था, बहुत प्रेशर आया आपका फैंस की तरफ से कि ये बंदा वो है जिसने 10-10 विकेट्स लिए हैं टेस्ट मैचेस में, तो इसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, प्रॉपर स्पिनर है ये वो। और जब से आया मेरे ख्याल से ही हैज़ परफॉर्म, टेकन विकेट्स, बॉल्ड इकोनॉमिकली वेल। सही है, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, 50 ओवर ओडीआई टेस्ट या T20 जो भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये T20 में अडेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि टेस्ट से T20 अलग ही फॉर्मेट होता है, बट ही अडेप्टेड ब्यूटीफुली। सही है, आई थिंक इट वाज जस्ट अ बैड डे टुडे। और इंडिया की बैटिंग क्लास तो है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ईशान किशन ने जिस तरीके से आज स्पिनर्स को खेला, जिस तरीके से स्वीप किया, तो अपना आई थिंक ही वाज जस्ट आउट क्लास टुडे बाय द ऑपोजिशन। तो इसका मतलब कि हमारी बॉलिंग में जो है ना, फिर वो एक ही है, वो है फिर शराब खान। अच्छा, शराब खान ज्यादा नहीं बन रहा है। I'm very sorry to say, I cannot find any. I mean, again, minus the USA, minus the Netherlands. Yeah, true, true. I agree with you.